Hello everyone, I hope I'm clearly audible and visible to all of you guys. So first of all, let me introduce myself. My name is Ravranjan and I'm basically from Bihar. I had a teaching experience of 4 plus years with honors in zoology. So today I'm here with all of you guys to discuss very simple and basic topic, spermatogenesis. Spermatogenesis. As all of you know, spermatogenesis is a part of gametogenesis in human reproduction. Spermatogenesis gametogenesis का part है human reproduction में. In biology, it is very simple to learn any terminology by breaking down it. So here spermatogenesis is made up of two words. First spermato and second is genesis. Genesis is a basically Greek word which means formation. Formation. Whenever the genesis word comes, it means formation. If there was gametogenesis, then that means formation of gamete. It is spermatogenesis, then formation of what? Sperm. Is it clear? Okay. In the topic of spermatogenesis, we are going to discuss three points. Where does it occur? The site or location. Where does it occur? Second, which cells are involved in it? The involvement of cell. Third, how it occurs? The process. So let's start with where does it occur? Where does it occur? Where does it occur? As all of you know, in human male, testes is primary sex organ and primary sex organ is responsible for formation of what? Gamete. So here testes will make gamete or a sperm. Testes. When we are going to see a structure of testes, it shows about 250 compartments within it, which is known as testicular lobules. Testicular lobules. जैसे बेसिकली हम लोग कहते हैं एक ऑरेंज है और ऑरेंज में बहुत सारे कंपार्टमेंट हैं. सेम टेस्टिस के पास बहुत सारे कंपार्टमेंट या लोब्यूल्स हैं. ऑरेंज के साथ हम टेस्टिस को कंपेयर कर सकते हैं. जब हम एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को देखते हैं then it shows about 1 2 3 seminiferous tubule within it. Seminiferous tubules within it. जैसे हमने कहा ऑरेंज में बहुत सारे कंपार्टमेंट है और एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 सीट हैं. किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3. सेम हियर टेस्टिस में बहुत सारे कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 ट्यूब, seminiferous tubule. When we are going to see the transection view of testes, it shows about different types of different compartments, which is about 250 in numbers, are present there. The blue colored compartment, and each compartment have narrow tube-like structure known as seminiferous tubule, and this seminiferous tubule is the site of formation of a sperm. So seminiferous tubule is the site where formation of a sperm occurs. जब हम एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और एक कंपार्टमेंट को देखते हैं then it shows about 1 2 3 testicular lobules within it. When we are going to enlarge a seminiferous tubule, it shows different type of cells within it. From the outer layer, a cuboidal cell, which is cuboidal in nature, is responsible for forming the epithelium of
seminiferous tubule, and this cuboidal cell is known as germinal epithelium. Germinal epithelium. Germinal epithelium. Let's suppose this is the transection view of seminiferous tubule and the cell from inside, which is the outer cell known as germinal epithelium. After this germinal epithelium, around the cells known as spermatogonia. Spermatogonia are present there. Spermatogonia are present there. And in between these spermatogonia, there are cylindrical cells, which is known as Sertoli cells. Cylindrical cells, which is Sertoli cells. Sertoli cells. Let's suppose this is seminiferous tubule, the layer forming the epithelium, germinal epithelium. Just beneath the germinal epithelium, this is spermatogonia. In between spermatogonia, Sertoli cells, and the empty space in middle is known as lumen. So germinal epithelium is responsible for formation of outer layer of epithelium. Spermatogonia is known as मम्मी सेल, मदर सेल. जैसे बेबी के बर्थ के लिए मदर रेस्पॉन्सिबल है, सेम हियर स्पर्मेटोगोनिया रेस्पॉन्सिबल है स्पर्म के बर्थ के, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए. अब सर्टोली सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं टू हूम, न्यूली फॉर्म्ड स्पर्म सेल और स्पर्मेटोगोनिया. सो दिस सर्टोली सेल इज आल्सो नोन एज नर्स सेल. जैसे नर्स देखभाल करती है, सेम हियर सर्टोली सेल देखभाल करती है, केयर टेक करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है. So this is all about where it occurs and the involvement of cells. Now we are going to see about the process. Process of what? Process of formation of a sperm. Process of formation of a sperm. Process of formation of a sperm. तो हमारे पास क्या है? Spermatogonia, sperm mother cell. Spermatogonium, spermatogonium. In singular, it is spermatogonium, and in plural, it is spermatogonia. Spermatogonia की प्लॉइडी कैसी है? Diploid 2L. As all of you know, all cells of human being are diploid in nature except germ cell. तो ये भी डिप्लॉयड होगा, और डिप्लॉयड को हम 2N से रिप्रेजेंट करते हैं. क्यों? N एक सेट और 2 रिप्रेजेंट 2 सेट्स. तो इसमें हर एक क्रोमोसोम्स का 2 सेट्स होंगे. दिस इज 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉयड इन नेचर. अब ये स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई करते हैं खुद को, मल्टीप्लाई देमसेल्व्स बाय माइटोसिस. मल्टीप्लाई करके खुद के नंबर को इंक्रीज करते हैं. स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारे बन गए और ये अपने आप नंबर को इंक्रीज किए. इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया अब डिफरेंशिएशन करेंगे. डिफरेंशिएशंस एंड डिवीजन. डिवीजन कैसे? माइटोसिस से. डिफरेंशिएशन और डिवीजन करके ये सेल बनाएंगे जो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हुआ. तो यहां माइटोसिस से नंबर बढ़ाए, प्लॉइडी सेम. यहां भी डिफरेंशिएशन हुआ और डिवीजन कैसे हुआ? माइटोसिस से. तो यहां भी प्लॉइडी सेम, डिप्लॉइड ही रह गए. ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मतलब फर्स्ट, स्पर्मेटोसाइट मतलब क्या? स्पर्म फॉर्मिंग सेल, और प्राइमरी मतलब फर्स्ट. तो फर्स्ट स्पर्म फॉर्मिंग सेल. अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस में जाएंगे, मियोसिस, और मियोसिस कंप्लीट करके ये 2 सेल बनाएंगे, 2 सेल, विच इज नोन एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं.
यहां मियोसिस हुआ तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे, एक एक सेट क्रोमोसोम्स दोनों में चले जाएंगे, मतलब आधा क्रोमोसोम्स इस सेल में, आधा क्रोमोसोम्स इस सेल में, तो n यहाँ n यहाँ, क्योंकि मियोसिस कैसा है, रिडक्शनल डिवीजन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड इन नेचर है। यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो जाता है कि प्राइमरी हैप्लॉइड है या सेकेंडरी हैप्लॉइड है। तो यार देखो, प्राइमरी मतलब क्या होता है, फर्स्ट, अगर फर्स्ट है तो 2 होगा, एक है तो 2 होगा, और सेकेंडरी मतलब क्या होता है, सेकंड, 2 है तो 1 होगा, 1 तो 2, 2 तो 1, सिंपल। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 करेंगे, जो कि फाइनल स्टेज ऑफ मियोसिस है, और मियोसिस कंप्लीट करके 4 सेल बनाएंगे, मियोसिस कंप्लीट करके 4 सेल, विच इज नॉन एज स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ। मियोसिस 2 जो है सो लाइक माइटोसिस इक्विटेशनल डिवीजन है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रह जाएंगे, यहाँ पे हाफ नहीं होंगे, n/2 नहीं होगा। स्पर्मेटिड क्या, बेसिकली स्पर्म सेल ही है, बस इनमें कुछ फाइनल मैच्योरेशन नहीं हुआ, साइटोप्लाज्म ज्यादा है, टेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो अब क्या होगा, फाइनल मैच्योरेशन, जिसे हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस कंप्लीट करके फाइनल स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या हुआ, टेल का फॉर्मेशन हुआ, साइटोप्लाज्म कम गए, एक्रोसोम्स अपवार्ड मूव कर गए, एक्रोसोम्स अपवार्ड मूव कर गए, माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल हो गए। नाउ दिस इज फाइनल स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म। इसकी प्लॉइडी कैसी होगी, n, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन में क्रोमोसोम में कोई चेंजेस नहीं। अब ये फाइनल स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ क्या करते हैं, न्यूट्रिशन के लिए सर्टोली सेल्स के पास जाते हैं और अपना हेड सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड कर देते हैं, इस तरह से सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड कर दिए। न्यूट्रिशन पूरा होने के बाद सर्टोली सेल से निकल के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, वहां आ जाते हैं ल्यूमेन में। तो द रिलीज ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल इन ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल known as spermiation, यहाँ पे कोई जेनेसिस बर्ड नहीं है, मतलब फॉर्मेशन नहीं होगा, ये रिलीज का बात है, यहाँ पे रिलीज हो रहा है स्पर्म, कहाँ, सर्टोली सेल से ल्यूमेन में। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम लोग एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। क्या, वेयर डज इट अकर, टेस्टीज में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बहुत सारे सेल्स। इस डायग्राम को एनसीईआरटी इस तरह से दिखाया है, लाइक दिस। ये ट्रांसैक्शनल व्यू है इसका, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बेस पे स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस कंप्लीट करके स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड मैचुरेशन करके स्पर्मेटोजोआ, और यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया के बीच बीच में सर्टोली सेल, सिलेंड्रिकल सेल भी दिख रहे हैं, और स्पर्म को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते दिख रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट वेयर इट अकर। अब प्रोसेस में स्पर्मेटोगोनियम डिफरेंशिएशन करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस कंप्लीट करके स्पर्मेटिड, और मैचुरेशन करके स्पर्मेटोजोआ। इस डायग्राम को एनसीईआरटी इस तरह से दिखाया है, लाइक दिस। स्पर्मेटोगोनिया है, डिफरेंशिएशन करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, मियोसिस कंप्लीट करके स्पर्मेटिड, और मैच्योर होके स्पर्मेटोजोआ। So this is all about process. यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस। Spermiogenesis is a single step process from which a spermatid is get matured into
2 for spermatozoa, whereas spermatogenesis complete step process है स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनाने का, और स्पर्मिएशन ये स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर नहीं आता, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ के फॉर्मेशन तक का प्रोसेस है। सो दिस इज द स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसमें कुछ पॉइंट्स रिमेंबर रखने के लिए हैं जो कि कंक्लूजन में हम यहां नोट कर देते हैं। कंक्लूजन में क्या है? स्पर्म सेमिनिफेरस टिब्यूल इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेमिनिफेरस टिब्यूल, and spermatogonia is the sperm mother cells. Spermatogonia sperm mother cell, और स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस होके स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन, डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस हुआ, और ये हैप्लॉयड स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। So this is all about today's class. In next class we are going to discuss about hormonal control of spermatogenesis. So thanks guys, have a nice day.